Good morning, everyone. Hope everyone is keeping safe and doing well. On the occasion of World Diabetes Day, Tricolor Hospitals has taken an initiative to educate people about diabetes, its symptoms, precautions, and causes. For this, we have with us Dr. Vishwa Unadkat, who is a senior consultant diabetologist at Tricolor Hospitals. Good morning, sir. How are you doing today? Good morning. I am fine. I hope all the listeners are safe too. I hope too. So, please tell us something about yourself. Yes, myself, Dr. Vishwa. I am practicing in diabetes for last 9 years now, and I am basically focused in giving comprehensive diabetes care to our patients, right? And my exact motto is generally to give patient less medicines and proper guidance non-pharmacologically to control its sugar, to avoid the complication, and exactly we want to avoid the morbidity and mortality related to diabetes. तो बेसिकली जो डायबिटीज का जो चक्कर है, जो अनफॉर्चुनेटली एक लाइफ में काफी गंदा इम्पैक्ट लाता है, वो इम्पैक्ट हम सिंपल तरीके से अवॉइड करने के ट्राई करते हैं, राइट? Right. Thank you, sir. This will be an interactive live session. I request our viewers to, share any queries and doubts related to diabetes in the comment section. We will be taking up these questions by the end of our session. So this year has been a challenge to everyone. Can you shed some light on how 2020 has affected those with diabetes? Definitely, see, this year is difficult one for everyone, right? No matter which faculty they belong, no matter which class of society they belong. But before coming to 2020, मैं मेरे दर्शकों को थोड़ा वर्ल्ड डायबिटीज डे के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है, ये बेसिकली 1991 में WHO और IDF, दैट इज इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, ये जो दो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने प्रपोज किया था कि एवरी 14th नवंबर ऑफ एवरी ईयर वी आर गोइंग टू मार्क दिस डे एज अ वर्ल्ड डायबिटीज डे, राइट? ये 14 नवंबर क्यों आया? तो भाई 14 नवंबर जो है, इट इज बेसिकली अ बर्थडे ऑफ डॉक्टर बेंटिंग, राइट? Banting is nothing but he is the person who actually revolutionized the treatment of diabetes by discovering insulin. ठीक है? So इंसुलिन की जिसने शोध की थी, दो डॉक्टर थे, उसमें से जो डॉक्टर बेंटिंग है, उसका बर्थडे 14th नवंबर को आता है. So every year it is been marked as a World Diabetes Day. ये वर्ल्ड डायबिटीज डे करना क्यों पड़ा हमें? कि भाई इन द लास्ट पार्ट ऑफ प्रीवियस सेंचुरी 80s 90s में ऐसा लगने लगा एपिडेमियोलॉजिस्ट को कि अभी जो डायबिटीज का बर्डन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड काफी बढ़ रहा था, राइट? एक तरह हमारा ट्रीटमेंट पार्ट भी रिवोल्यूशनराइज हो रहा था, अच्छी अच्छी मेडिसिन आ रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हो रहे थे और पेशेंट में जो डायबिटीज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे वो भी काफी बढ़ रहे थे. तो एक ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव लेने के लिए WHO और IDF ने ये 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के तौर पे सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया. एंड इवन इन 2006 यूनाइटेड नेशन हैज आल्सो मार्क्ड this particular day as a World Diabetes Day. So every year this body do come with a particular slogan of the Diabetes Day, and this year the slogan is Diabetes and Nurses, right? So nurses, as we all know, कि healthcare में at every particular point, चाहे वो आउट पेशेंट यूनिट हो, चाहे वो इन पेशेंट यूनिट हो, चाहे वो कोई भी तरह का केयर हो, डाइट रहता है, इंजेक्शन देना रहता है, गोली देना रहता है, पेशेंट को समझाना रहता है, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना रहता है. सो नर्सेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? सो टुडे इन 2020 this year the World Diabetes Day theme is diabetes and nurses, right? So this was something regarding World Diabetes Day.
Now, as you said that 2020, right? So 2020 year has actually played cricket 2020 like match today. There are too many scores being done. Unfortunately, some negative scores are there. Some positive scores are also there. तो अगर हम डायबिटीज और 2020 की बात करें तो क्लियरली ये कोविड इम्पेक्टेड ईयर रहा है. सो एज वी ऑल नो कि डायबिटीज में आमतौर पे कोई भी इन्फेक्शन जो रहता है, इन्फेक्शन का संक्रमण होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है. और नॉट ओनली संक्रमण बढ़ जाता है बट उसका कॉम्प्लिकेशंस जो रहता है, उसका जो आउटकम रहता है, वो आउटकम या कॉम्प्लिकेशन भी जनरल पब्लिक से वो थोड़ा बुरा हो सकता है. अनफॉर्चुनेटली डेथ, अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन पड़ जाता है तो डेथ रेट भी डायबिटीज में ज्यादा पाया जाता है. तो सिमिलरली कोविड में भी ऐसा देखा गया है कि कोविड के कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ रेट्स were actually more in diabetic patient, right? And another few things that just came across in our data is कि कोविड के वजह से दो चीज हुई है. एक थोड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट गया, लोगों ने अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पाए. कोई लोग ऐसे थे जो खाने में कंट्रोल नहीं कर पाए, कोई लोग ऐसे थे तो दवा ठीक से नहीं ले पाए, मॉनिटरिंग ठीक से नहीं पाए, उन लोगों का डायबिटीज बिगड़ गया है. बट देयर वर एक्चुअली गुड पेशेंट वर आल्सो देयर जिसको अच्छा टाइम मिला, उसने टाइम का यूटिलाइजेशन किया. जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे उसने अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह की. जो डाइट पे ध्यान नहीं रख पाते थे बिकॉज ऑफ देयर बिजी शेड्यूल्स एट ऑफिस एंड वर्किंग प्लेस, अगर उसको वर्क फ्रॉम होम होने लगा तो दे वर एक्चुअली फोकसिंग वेल ऑन डायबिटीज. सो दोज वर द पीपल के जहां पे उसको डायबिटीज में अच्छा इंपैक्ट रहा, जिसके हमें एक्चुअली जो मेडिसिन चल रही थी 4-4, 5-5 थी, वो अभी 1-1, 2-2 मेडिसिन से कंट्रोल में होने लगे. जो वेट काफी ओवरवेट ओबेस हुआ करता था वो अच्छे से कंट्रोल में आने लगे. सो इट्स एक्चुअली डिपेंड ऑन यू, राइट, कि आप सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो. सो 2020 हैज गिवन एवरीथिंग, राइट. तो थोड़ा पॉजिटिव स्कोर भी बढ़ा है, थोड़ा नेगेटिव स्कोर भी बढ़ा है. एंड थर्ड थिंग जो इम्पोर्टेंट रही है कि बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों को एडमिट होना पड़ा, कोई कोई को स्टीरॉइड्स या और कोई इंजेक्शंस लेने पड़े. तो ऐसी सिचुएशन में टेम्पररी हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब डायबिटीज तो नहीं बट शुगर ज्यादा पाया जाता है स्टीरॉइड की वजह से. तो ऐसे काफी पेशेंट आए जो आफ्टर फ्यू वीक्स रिवर्स हो जाते हैं, उसको डायबिटीज लॉन्ग टाइम पर नहीं रहता है. बट देवर एक्चुअली अनदर डेटा के जो प्री डायबिटिक फेज में थे या अनडायग्नोस्ड फेज में थे, वो उसको कोविड हुआ और उसके इन्वेस्टिगेशन की गए या फिर उसको स्टीरॉइड लिया तो उसका जो हाइपरग्लाइसेमिया हुआ वो वापस रिवर्ट नहीं हो रहा है. तो बहुत सारे ऐसे नए डायबिटीज पेशेंट भी हमें देखने में आए हैं. So it's almost a very widespread effect of 2020 which is there on diabetic patient, right? Yes, please. Right. So it has a good side also, but it also has a bad side. Right. So, sir, diabetes का सबसे deadliest symptom क्या होता है? Yeah, very good question. See, diabetes के जो symptoms है, right? वो सबको पता है कि भाई यूरिन ज्यादा लगता है, प्यास ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, आपका वेट लॉस होता है, हाथ पांव में झंझनाहट सी रहती है, थकान रहता है, ठीक है. बट जो डेडलीस्ट सिम्टम है, जो सबसे खतरनाक सिम्टम है, वो जो मैं मानता हूँ वो ये है कि इट इज टोटली एसिम्प्टोमेटिक. मतलब आपको कोई सिम्टम ना हो, राइट, या फिर इतने माइनर लेवल के सिम्टम हो कि यू में एक्चुअली निग्लेक्ट इट. कि जैसे थोड़ा सा थकान हो रहा था, अभी विंटर आया तो रात को यूरिन तो जाना पड़ता है, या फिर समर था तो बहुत प्यास लग रही थी, राइट, अभी मैंने थोड़ा डाइट चालू किया तो वेट लॉस अपने आप हो रहा है, ठीक है. तो ये सब चीज हम कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं. तो मोर और लेस जो एसिम्प्टोमेटिक फेज है, ठीक है. मैं एक ही एग्जांपल देना चाहूंगा कि इवन टुडे सी अपने पास नाउ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर देयर, इवन एवरी एम्प्लॉयर्स are taking very good care of their employees. उसके annual checkups वगैरह होते हैं. People have become very understanding कि अभी उसको भी पता है कि अगर रिस्क में वो बिलोंग करते हैं तो अपने आप को शुगर चेक करना है, ईयरली अपना मॉनिटरिंग करना है. बट स्टिल वी फाउंड दोस टाइप ऑफ पेशेंट कि भाई हार्ट अटैक की वजह से एडमिट हुए हैं, उसको पता ही नहीं और उसका शुगर 400 निकल आया, ठीक है. सीवी स्ट्रोक पैरालिसिस इस वजह से एडमिट हुए, या और कोई इन्फेक्शन लेके, जैसे पेट का कोई इन्फेक्शन लेके आए हैं, बट भाई साहब को तो पता ही नहीं था कि उसको शुगर है,
उसको पहली बार तब जाके पता चलता है जब ऑलरेडी अटैक आ जाता है, ठीक है। सो द पॉइंट व्हाट आई वांट टू मेक ओवर हियर इज जो एसिम्प्टोमेटिक फेज है, दैट इज द डेडलीस्ट symptom in my eye, right? It is always difficult to manage this type of patient. अगर गलती से उसका डायग्नोसिस हो भी जाता है जैसे चेकअप वगैरह में, तो वो एक तो उसको रियलाइज नहीं होता कि यार मेरे को ये कैसे आ गया, ठीक है। तो उसको डॉक्टर जो अच्छे से एडवाइस देता है या उसको ट्रीटमेंट समझाता है, और मेनी अ टाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट ऑन द पार्ट ऑफ पेशेंट टू एक्चुअली एक्सेप्ट एंड टेक ट्रीटमेंट कि मुझे तो कुछ नहीं है, मैं क्यों ट्रीटमेंट करूं। तो ये वाली सिचुएशन आ जाती है। सो इन माय आईज द डेडलीस्ट सिम्पटम इज asymptomatic diabetes. Right. So the next question is, what are the complications related to diabetes? Yes. So इसमें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो डायबिटीज है बेसिकली, राइट, तो उसको तो हमें पता है कि भाई आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 के ऊपर आ जाए, या प्राइमरी ब्लड शुगर है वो 200 के ऊपर आ जाए, प्लस जो हमने डायबिटीज के सिम्टम की बात करी वो सिम्टम्स आपको है, या जो HbA1c करके जो टेस्ट होती है 3 महीने की एवरेज शुगर, अगर वो 6.5 से ऊपर आ जाए तो डायबिटीज आ गया माना जाता है। तो हमें सिर्फ ये शुगर को कंट्रोल नहीं करना है, शुगर कंट्रोल करना इज द फर्स्ट स्टेप ओनली, राइट। इफ यू से कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटीज केयर, व्हाट वी एक्चुअली वांट टू से विद कॉम्प्रिहेंसिव केयर इज बेसिकली हम जो डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है सारे, राइट। तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस है कि भाई डायबिटीज जो है वो हार्ट को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, नर्व्स को अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट करता है, रेटिना को अफेक्ट करता है, स्किन को अफेक्ट करता है और फूड को अफेक्ट करता है। सो मेजोरिटी जो अपने सारे वाइटल ऑर्गन्स है सबको डायबिटीज अफेक्ट करता है, सब में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है, राइट। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको प्रिवेंट करना, उसका टाइमली चेकअप करना, अगर आपको शुरुआत के मैनिफेस्टेशन आते हैं तो या तो उसको अगर रिवर्स कर पाते तो रिवर्स करना, या फिर अगर उसको प्रोग्रेशन उसका हम स्टॉप कर सकते हो तो प्रोग्रेशन स्टॉप करना। दैट इज द मेन मोटो ऑफ ट्रीटिंग डायबिटीज पेशेंट, राइट। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है अगर उसकी हम डिटेल में बात करें, जैसे स्किन के कॉम्प्लिकेशन है, राइट, तो स्किन में छोटी छोटी फुंसी से लेके बड़े बड़े इन्फेक्शन तक, बैक्टीरियल है या फंगल इन्फेक्शन है, वो आपको रिकरेंट होते रहते हैं कि यहाँ पे हाथ में एक बार हुआ, आपने ट्रीटमेंट लिया, तो फिर कुछ दिनों बाद वापस पैर में कहीं हुआ, फिर पेट में हुआ, बैक में हुआ। अगर ऐसे आपको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं देन इट इज अ प्रोबेबली स्किन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। देन देयर आर सर्टेन अदर टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग स्किन, तो वो सब मेडिकल चीजें एकदम हमें इसमें डिस्कस नहीं करनी है, बट स्किन में अलग अलग टाइप का इन्फेक्शन। देन कम्स रेटिना, जैसे आंख का पर्दा है, ठीक है, आपके पर्दे में रेटिनोपैथी हो जाती है। तो सबको पता है कि भाई डायबिटीज में हमें एटलीस्ट 1 साल में एक बार आपका आंख का पर्दों का जांच करना है, आपके आंख का प्रेशर चेक करना है, आपको ग्लूकोमा डेवलप तो नहीं हो रहा है। अगर उसमें से कोई शुरुआती जांच पाई जाती है तो वो 12 महीने के मॉनिटरिंग से बजाय हम 3 महीने 4 महीने करते हैं, या अगर सीवियर लेवल पे पाई जाती है तो आपको उसकी ट्रीटमेंट है, लेजर है या कोई इंजेक्शन लेना है वो करना पड़ सकता है, राइट। एंड नाउ कम्स द नेफ्रोपैथी, जैसे किडनी के ऊपर। तो जब डायबिटीज की वजह से जो किडनी का अफेक्शन होता है, वो किडनी फेलियर से पहले एक स्टेज आता है जिसको हम नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिसमें माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, दैट इज द पैसेज ऑफ माइक्रो एल्ब्यूमिन इन योर यूरिन। तो आपके डॉक्टर देखते होंगे कि भाई आप यूरिन में यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो, जो स्पॉट रेशियो वो करवाते होंगे। तो ये अगर 30 से ऊपर आता है तो उसको माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया बोलते हैं। तो वो आगे जाके 5, 10, 15 साल बाद आपको किडनी फेलियर करता है, राइट। तो ये जो किडनी वाला पॉइंट है उसको फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन पाया जाता है तो 2 चीज दिखाता है कि फ्यूचर में आपको किडनी फेलियर का तो रिस्क है ही है, बट माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की वजह से आपको हार्ट का, ब्रेन का, किसी का भी स्ट्रोक भी आ सकता है, राइट। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन दैट वी ऑलवेज लुक फॉर। तो माइक्रो एल्ब्यूमिन लेवल तो हम साल में 1 या 2 बार भी कर लेते हैं, पेशेंट का चेक कर लेते हैं। और एक्चुअली स्पीकिंग जब डायबिटीज की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो जब पहली ही बार पेशेंट को डायबिटीज पाया जाता है तब एल्ब्यूमिन लेवल यूरिन में है कि नहीं वो चेक करना मैंडेटरी है। अगर वो है तो आपका ट्रीटमेंट अलग दिया जाएगा, अगर वो नहीं है तो आपका ट्रीटमेंट अलग दिया जाएगा। सो ऑलवेज आस्क योर डायबिटीज केयर प्रोवाइडर व्हेन ही इज टेकिंग ट्रीटमेंट टू यू, आप जो है आपका माइक्रो एल्ब्यूमिन लेवल चेक करें, राइट। देन कम्स द फूड कॉम्प्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि भाई अपना जो नर्व है,
जो वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, उन सब में जो डायबिटीज की इफेक्ट आती है, उसकी वजह से क्या है कि अपने पाँव में वैसे झंझनाहटपन होना, पेन सेंसेशन होना, ये सब चीजें तो होती है, बट कभी कभी क्या होता है कि नर्व्स के इफेक्ट की वजह से आपके सेंसेशन थोड़े कम हो जाते हैं, तो आपको छोटी छोटी खरोच वगैरह लगती है या कोई अल्सर हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता। हो सकता है कभी वो छोटी खरोच अल्सर का अगर बड़ा स्वरूप हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो कभी कभी उसको डेब्राइड करना, एब्सेस होना, बोन में इन्फेक्शन चला जाना, और लास्ट में अनफॉर्चुनेटली कभी एम्प्यूटेशन भी करना पड़ सकता है। तो फूड के लिए हम हमेशा अपने पेशेंट को बोलते हैं कि आपको जो डेली आपको आपका फुट एग्जामिनेशन करना है। वंस यू आर गोइंग टू टेक बाथ, आपको आपका सोल है वो पूरा ऐसे घुमा के देखना है। कहीं पे अगर कोई थिक स्किन हो गई जिसको हम कैलस बोलते हैं तो वो एक चेक करना है। आपके उंगलियों की बीच की जो जगह है उसको वेट नहीं रखना है, उसको अच्छे से आपको ट्राई करना है, ठीक है। कहीं पे कोई छोटा सा अल्सर है तो आपको चेक करना है। कोई प्रेशर पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आपको पेन हो रहा हो, तो ये सब चीजें आपको डेली आपके पैर में देखनी है अगर आप डायबिटिक हो तो। और अनदर थिंग दैट वी ऑलवेज आस्क अवर पेशेंट कि आप अगर घर में भी मूव कर रहे हैं तो आप घर पे रूम स्लीपर्स पहने रखेंगे, एंड एज एंड व्हेन यू गो आउटसाइड योर होम always wear a good quality socks and good quality shoes, right? तो ये चीजें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो छोटी छोटी ली गई स्टेप्स आगे जाके आपको बहुत फायदा करती है, राइट? ठीक है, तो ये एक चीज थी। और बाकी तो जैसे हार्ट का और ब्रेन का है, अगर वो उसकी नलियों में ब्लॉकेज आते हैं तो हम सबको पता है कि वो हार्ट अटैक कर सकता है, हार्ट फेलियर कर सकता है। ब्रेन में जो है वो आप सीवी स्ट्रोक कर सकता है। तो दीज आर वेरी well known complication of diabetes, right? So in short, this was regarding diabetes complications. Okay, all right. So when should a diabetic patient go for injectable therapy to control his sugar? Yes. See, abhi, this is the biggest fear, right? Even on the part of doctor as well as on the part of patient. कि भाई अगर आपका इंजेक्शन डॉक्टर कहीं ना दे दे हमें। अगर कभी कभी देखा जाता है कि जनरल पॉपुलेशन में ऐसी बिलीफ है कि अगर 300-400 शुगर आ गया तो डॉक्टर है वो आपको इंजेक्शन ही दे देगा या XYZ चीजें, राइट? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंजेक्शन के जो इंडिकेशंस है, राइट, इंजेक्शन में भी अभी दो तरह के इंजेक्शन है। एक तो है इंसुलिन, ठीक है, अलग अलग टाइप के इंसुलिन, और दूसरा जो है वो है इंजेक्टेबल GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। आप में से शायद बहुत सारे पेशेंट अभी GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के जो इंजेक्शन है वो भी लेते होंगे। तो पहले हम इंसुलिन की बात करते हैं। तो बेसिकली जो इंसुलिन है, इंसुलिन के इंडिकेशन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, मतलब OPD में वैसा है कि अगर सच में आपको 2-3-4 मेडिकेशन से आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, राइट, तो आपको इंसुलिन के बारे में सोचना पड़ता है, राइट। और बहुत बार क्या होता है कि शुगर आपका पहली बार पाया गया है बट आपको हाइपरग्लाइसेमिया के काफी सिम्टम्स है, क्लियर कट सिम्टम्स है, वेट लॉस काफी होने लगा है, तो ऐसे पेशेंट को हमें इंसुलिन पे रखना पड़ता है, राइट। एंड सेकेंडली जो इंडोर पेशेंट है, इंडोर पेशेंट में अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, खास करके सीवियर इन्फेक्शन है, या फिर आपका सर्जरी कोई हुआ है, ठीक है, आप प्रेग्नेंट हो, राइट, आपको और कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर ऐसे पेशेंट को हम इंसुलिन के ऊपर रखते हैं, राइट। और दो कॉम्प्लिकेशन ऐसे हैं जो डायबिटीज के अक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट बोलते हैं, राइट। तो अगर ये दो कॉम्प्लिकेशन है तो दिस इज द इंसुलिन इज लाइफ सेविंग, देन विदाउट इंसुलिन यू कैन नॉट सर्वाइव, राइट। सो ये जो सिचुएशन में इसमें इंसुलिन मैंडेटरी हो जाता है। बट बहुत बार ऐसा भी पाया जाता है स्टिल इन इंडिया कि आपका शुगर 400-500 आ रहा है, आपको पता ही नहीं था, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एंड समडे वन बैड डे यू गॉट द डायग्नोसिस कि आपका HbA1c 10-11 है, आपका शुगर इतना है, डॉक्टर ने केयरफुल इवेल्युएशन किया, उसको लगा कि आपको हाइपरग्लाइसेमिया के अभी भी बहुत सारे सिम्टम नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे पेशेंट को हम with their demand and with their consent इंसुलिन स्टार्ट नहीं करते और शुरुआत की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको सच में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो डायबिटीज में हमें कोई अर्जेंसी नहीं है कि आपका शुगर जो 500 है वो हमें एक ही दिन में 100 पे ला देना है या 2 दिन में ला देना है। वो धीरे धीरे करके ओवर पीरियड ऑफ 20-30 डेज या एट द मैक्स 1.5 to 2 months वो धीरे धीरे करके हम कंट्रोल करते हैं। तो कभी कभी हम ऐसे 400-500 शुगर वाले पेशेंट को भी दवा पे रखते हैं और वो दे डू एक्चुअली दे डू वेरी वेल, राइट, वो अच्छे से कंट्रोल में हो जाते हैं, राइट। सो दैट वाज अबाउट इंसुलिन।
Now another injection which is GLP-1 receptor agonist, right? तो ये थोड़ा बड़ा नाम है, थोड़ा कम्युनिटी लेवल पे डिस्कस करने में, बट इन टुडेज टाइम अगर हम डायबिटीज को कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीट करते हैं तो ये जो GLP-1 receptor agonist injection है, it is not only sugar controlling medicine, but it also gives very good impact if you are a heart patient, इफ यू आर ओबेस पेशेंट, तो उससे आपका शुगर कंट्रोल अच्छा होता है, हार्ट के ऊपर कुछ फेवरेबल इफेक्ट्स है और आपका वेट लॉस भी साथ साथ में होता है. सो दीज आर द 3 इंडिकेशंस. जिसका शुगर अनकंट्रोल्ड है, ओबेस पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, उसको हम GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इंजेक्शन भी ऑफर करते हैं. सो दीज आर द ओनली इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन इन डायबिटीज पेशेंट, राइट? Okay, all right. Sir, how can diabetes patients consume sweets in their diet? Yes, that is a very good question, right? देखिए, हम जब भी पेशेंट को पहली बार काउंसल करते हैं, राइट, सो वी ऑलवेज ट्राई टू लुक एट हिज एक्टिविटी लेवल फर्स्ट, एंड देन वी ऑलवेज लाइक टू सी कि उसका डाइट कैसा है. आमतौर पे ऐसा पाया जाता है कि उसका एक्टिविटी लेवल और जो डाइट है उसमें काफी मिसमैच रहता है, कि या तो टाइमली नहीं खाते या कम खाते हैं और एक्टिविटी लेवल बहुत हाई है, और उल्टा ज्यादा कॉमन है कि एक्टिविटी लेवल बहुत कम है बट खाना बहुत हाई जाता है, कैलोरी इंटेक बहुत हाई है, राइट? सो डाइट और स्वीट की बात तो इंडिविजुअली पेशेंट को बैठ के ही की जाती है, बट इन जनरल अगर हम गाइडेंस दे, जैसे दिवाली का त्योहार आ रहा है, साल ऑलरेडी काफी खराब गया है, अभी थोड़ा थोड़ा फर्स्ट वेव कोविड का कम हुआ है, लॉकडाउन रिलीज हो चुका है, हम थोड़ा हैप्पी होने का ट्राई कर रहे हैं, वी वांट टू एंजॉय नाउ. अगर दिवाली में अगर हम स्वीट खाना चाहते हैं, खास करके डायबिटीज पेशेंट को, यू कैन कंज्यूम स्वीट विद कंसेंट टू योर डॉक्टर. बट आप स्वीट अगर लेते हैं तो कब लेंगे कि भाई जनरली आपका मेजर मील है जब, ठीक है, किसी का मेजर मील ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कोई में से हो सकता है, तो मेजर मील के वक्त डोंट कंज्यूम स्वीट, ठीक है. देन व्हेन टू कंज्यूम, जैसे आपका लंच टाइम 1 बजे का है, डिनर टाइम 8 बजे का है, तो शाम को 4 से 5 बजे का जो टाइम है जहां पे आमतौर पे हम चाय या नाश्ता करते हैं, देन फॉरगेट दैट चाय नाश्ता एट दैट टाइम एंड यू कैन कंज्यूम अ पीस ऑफ स्वीट, व्हाटएवर स्वीट यू वांट. छोटा सा टुकड़ा आप ले लो, तो आपको स्वीट लेने का एक मजा भी आ जाएगा. आपने आपका चाय नाश्ता मिस कर दिया तो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो भी नहीं आएगी, एंड समवेयर दैट पर्टिकुलर स्वीट इज ऑलवेज गोइंग टू गेट डाइजेस्टेड विदाउट इंक्रीजिंग योर ब्लड शुगर मच. So this is a general thing that can be applied, but this is a particular question that I would always like कि आप पेशेंट जो है आपके जो केयर प्रोवाइडर डॉक्टर जो है उससे डिस्कस करके लेंगे, राइट? Right. So this was about sweets, but so now what is an ideal budget for diabetic management? Ideal budget in terms of finance, right? See, it is a very good question. इंडिया में ये क्वेश्चन ऑलवेज बैक ऑफ माइंड में होता है पेशेंट के, बट अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर से या डिस्कस नहीं करता या खुद से अपना बजट प्लान नहीं करता. मैं एक सिंपल एग्जांपल अभी आपको दिखाऊंगा कि काफी कॉमन है. शुरुआत के टाइम पे किसी को डायबिटीज आता है तो अच्छे से डाइट करता है, एक्सरसाइज करता है, दवा लेता है, एंड धीरे धीरे शुगर कंट्रोल होता है तो क्या करते हैं लोग कि भाई दवा अपने आप से कम कर देंगे, डॉक्टर के पास जाना कम कर देंगे, एंड स्टिल वी डू कम अक्रॉस दोज मेनी पेशेंट्स के वो दवा बंद भी कर देते हैं अपने हिसाब से. ऑब्वियसली उसका पॉइंट वैलिड होता है कि सर अभी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरा शुगर अब 90, 100, 120 आता है तो मैं क्यों दवा लूं, ठीक है. ऐसा खुद से सोच के वो सब बंद कर देते हैं दवा. फिर क्या होता है कि किसी में से किसी को इनमें आगे जाके 5-6 साल बाद या 3-4 साल बाद हार्ट अटैक निकल के आता है या किडनी फेलियर निकल के आता है, जो हमने कॉम्प्लिकेशन पहले डिस्कस किया था. सो दोज आर द कॉम्प्लिकेशन व्हिच एट माइक्रोस्कोपिक लेवल दे आर गोइंग ऑन इन योर बॉडी, नो मैटर आपका कोई सिम्टम नहीं था, यू आर राइट एट योर पार्ट, राइट. सो बजट क्यों इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. जैसे अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटीज केयर कर रहे हैं, ठीक है, तो शुगर तो हम मैनेज कर ही रहे हैं, साथ साथ में आपका कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग भी मैनेज करते हैं, ठीक है. तो अलग अलग सेटअप में चाहे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी है, नर्सिंग होम है, राइट, छोटा सिटी है, बड़ा सिटी है, तो उसका एक जो पूरे साल का अगर हम डिस्कस करें तो साल में आपका शुगर मॉनिटरिंग है, जैसे
5 से 6 बार आप फास्टिंग पोस्टप्रांडियल करेंगे, HbA1c करेंगे, तो उसका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा। बट आप कॉम्प्लिकेशन स्क्रीनिंग करेंगे, जैसे यूरिन में एल्ब्यूमिन का रेशियो हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, यूरिक एसिड हुआ, ठीक है, आगे जाके आप हार्ट के रिपोर्ट वगैरह करते हैं। अगर आप 40 साल के ऊपर है, हर 1-2 साल में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये जो इवेल्युएशन का बजट है वो अराउंड 8 से 10,000 बैठता है सालाना, ठीक है। और आपकी दवा जो चल रही है, राइट, तो वो दवा है पूरे साल की, आप गिनेंगे शुगर की, आपको ऑन एन एवरेज अगर 1 या 2 गोली चल रही है, हो सकता है आपको कोई कोलेस्ट्रॉल और कोई बीपी वगैरह की गोली काफी कॉमन इन लोगों में होती है, तो उसका बजट भी आपका डिपेंडिंग ऑन द डोसेज एंड द टाइप ऑफ मेडिसिन यू आर कंज्यूमिंग, ठीक है। अभी तो अपने पास जेनरिक भी है और द मोस्ट स्टैंडर्ड कंपनी की दवा भी है, बट अगर हम ऑन एन एवरेज पकड़े तो 8 से 10 हजार का आपका दवा का ये हो जाता है खर्चा। तो ऑन एन एवरेज अराउंड 16-20,000 इज योर ईयरली डायबिटिक बजट, ठीक है। अगर आप कहीं मेंबर हो, कोई हॉस्पिटल में आपने पैकेज ले रखा है, या फार्मेसी में कहीं मेंबर हो, आपको 10-20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस हिसाब से आप 12-15 हजार से चलते जाते हो, राइट। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस के बाय रिड्यूसिंग मेडिसिन ऑफ योर ओन या स्टॉपिंग दोज मेडिसिन ऑल टुगेदर, आपको ऐसा लगता है कि आप जो है वो आपका पैसा बचा देते हो क्योंकि आपको नीड नहीं है, ऐसा सोच के। बट अनफॉर्चुनेटली अगर 2-4 साल बाद आपको अगर कोई कार्डियक या किडनी या ब्रेन इवेंट होती है, अनफॉर्चुनेटली आपको आईसीयू स्टे आता है, ठीक है, तो अगर आपको पता है यार 2 या 4 दिन अगर आईसीयू में रहना पड़ा, तो वो खर्चा ऑल टुगेदर 1-1.5 लाख का 2 लाख का हो जाता है, राइट। तो जो आप 10-15 हजार बचाने गए थे, अगर आपने 5 साल अच्छे से भी दवा लिया है तो आपका खर्चा 50,000 60,000 का होगा। बट अगर अनफॉर्चुनेटली एक ही बार आईसीयू एडमिशन हुआ तो 1.5-2 लाख तक बात पहुंच जाएगी। सो पॉइंट ये है मेरा कि इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग विजन, राइट, तो अल्टीमेटली ये जो आप अपना इन्वेस्टिगेशन, कंसल्टेशन, मेडिसिन का बजट फिक्स करके आप अच्छे से चल रहे हो, और फ्यूचर में आईसीयू एडमिशन, एक एडमिशन भी अगर आप अवॉइड कर रहे हो, तो इट्स ऑल वर्थ, इट इज इवन चीपर देन अ सिंगल आईसीयू एडमिशन। तो ये सोच के आप चलेंगे, ठीक है। तो ये बजट आपका रखेंगे अच्छे से, और आपका जो भी मेडिसिन है, आपके डॉक्टर का कंसल्टेशन है, हो सकता है कहीं पे तो आप पैकेजेस करवा ले आपके डॉक्टर के पास जाके कि ये सालाना चेक करना ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि डॉक्टर बोले तो करना है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी बेचारा कभी कभी सोचता है कि यार ये पेशेंट नहीं मानेंगे या खर्चा नहीं करेंगे या यहाँ से दूसरी जगह भाग जाएंगे अगर मैं 2 टेस्ट लिख दूंगा, तो वो बेचारा भी कभी कभी नहीं बोलता है, तो वो नहीं करना है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है एज अ पेशेंट कि भाई मुझे मेरे कोलेस्ट्रॉल चेक करना ही है। अगर आप 45-60 का हो रहा हूँ तो मुझे मेरा हार्ट चेक करना ही है, किडनी चेक करना है, इसमें कोई मुझे एडवाइस की जरूरत नहीं है। इट इज नीडेड, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर की भी है, पेशेंट खुद की भी है, ठीक है। सो नाउ ऑनवर्ड्स आई वुड एक्सपेक्ट के ये जो बजट वाला पोर्शन है आप अच्छे से डिस्कस करें डॉक्टर के साथ, और आपकी मेडिसिन, आपके टेस्ट, आपका कंसल्टेशन का एक बजट बना ले, और वो बजट के ऊपर चले, ठीक है। उसको अननेसेसरी उसका कट शॉर्ट करके, अनएथिकली दवा बंद करके ऐसा आगे जाएंगे तो आगे अल्टीमेटली बड़ी भुगतान करनी पड़ सकती है, राइट। राइट। So can you shed some light on hypoglycemia? Yes, very important. See, कि जैसे हम बात कर रहे थे, राइट, कि डायबिटीज को शुगर कंट्रोल करना, कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदे ऐसे रहते हैं जिसका शुगर बहुत ही ज्यादा हो, या कभी वो है वो मानते नहीं अच्छे से, तो हमें इंटेंसिफाई करना पड़ता है ट्रीटमेंट। अगर इंटेंसिफाई कर रहे हैं ट्रीटमेंट तो कभी क्या हो जाता है कि आपने अच्छी वाली दवा, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दी या इंसुलिन पे रख दिया है पेशेंट को, बट वो टाइम से खा नहीं पाते, राइट। तो हो जाता है कि बॉडी में ऑलरेडी दवा इंसुलिन पड़ा हुआ है बट आपने खाया नहीं और आपको शुगर कम हो गया। तो आमतौर पे 70 से नीचे शुगर जाता है, अप टू 55 हम उसको माइनर हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, बट if it goes less than 55 तो it comes in a very significant hypoglycemia। तो जो हाइपोग्लाइसेमिया है वो itself is also very burdensome, right? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली हुआ होगा, उसको पता होगा कि अगर हाइपोग्लाइसेमिया अगर लंबा रहता है या सीवियर हो जाता है तो पेशेंट है उसमें
शुरुआत के चक्कर है, घबराहट है, पसीना है, शेकीनेस है, ट्रेमर है, आंखों के आगे अंधेरा से आगे सिम्टम चालू हो के अप टू सीजर से कोमा है, ठीक है, ऑल टुगेदर अनकॉन्शियस हो जाना, ये सब चीजें भी हो जाती है। तो अगर माइनर हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो आपने शुगर ले लिया, आपका डोज डॉक्टर के साथ डिस्कस करके एडजस्ट कर लिया, ठीक है। बट अगर आपने लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लिया है, लॉन्ग एक्टिंग कोई मेडिसिन ली है, तो उसका आपको बॉडी में इफेक्ट अराउंड 24 to 40 ईयर्स आ रहता है। तो अगर ऐसे पेशेंट का अगर शुगर कम होता है तो आपको ऑल टुगेदर 1-2 डेज हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है, डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन भी लगाना पड़ सकता है। सो हाइपोग्लाइसेमिया इटसेल्फ इज अ वेरी बिग क्वेरी, राइट। तो हमें हाइपोग्लाइसेमिया से बहुत बचना है। अगर देखा जाए तो अगर हाइपोग्लाइसेमिया जो टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट है, बच्चे है या यंग पेशेंट है, उसमें ऑलमोस्ट 70% तक कभी ना कभी लाइफ टाइम में उसको हाइपोग्लाइसेमिया होने की पॉसिबिलिटी है। बट जो टाइप 2 पेशेंट है, जो अपने एल्डरली पेशेंट है, एडल्ट पेशेंट है, उन लोगों में हाइपोग्लाइसेमिया 10-15% ही पाया जाता है। बट अगर हम दूसरा स्टेटिस्टिक्स देखें, जैसे टाइप 1 के पेशेंट टोटल डायबिटीज के 10% ही है, बाकी मोर देन 90% तो टाइप 2 के पेशेंट है। सो सब्सटेंशियली 10-15% of type 2 diabetes hypoglycemia makes very big number of hypoglycemia event, right? So it actually comes near 130 million sort of thing in all over world. So it is a very big burden, right? So हमें hypoglycemia से बचने का पूरा ध्यान रखना है। So basically जब आप डॉक्टर के साथ बैठते हैं, आपकी दवा फिक्स करते हैं, इंसुलिन फिक्स करते हैं, तो उसका टाइमिंग, उसका डोसेज और आपका जो डाइट का टाइमिंग है, उसको अच्छे से कोरिलेट करके रखना है, सो दैट वी कैन अवॉइड हाइपोग्लाइसेमिया। Right. What exactly is CGMS or how can it be useful? एग्जैक्टली तो ये अगर जैसे हमें पता है कि टेक्नोलॉजी साइंस हमेशा आगे बढ़ते रहता है, राइट। तो सीजीएमएस के बारे में बात करने से पहले हम एक एग्जांपल HbA1c के ऊपर लेंगे। जैसे सबको पता है, हमने अभी डिस्कस किया कि HbA1c जो 3 महीने का एवरेज शुगर है, वो हमें साल में, अगर आप काफी कंट्रोल चल रहे हो तो साल में 2 या 3 बार, बट अगर आप अनकंट्रोल लेवल पे है तो हम मिनिमम 4 से 5 बार HbA1c चेक करते हैं आपका, सो दैट वी कैन दैट विल एक्चुअली गाइड अस हाउ टू इंटेंसिफाई और डी इंटेंसिफाई आवर थेरापी, राइट। अगर हम लॉजिकली बोले कि भाई मेरा शुगर 150 और 250 के बीच में रहता है, तो एवरेज आ गया 200, ठीक है। बट अगर मेरा शुगर 100 और 300 के बीच में भी रहता है, तो भी एवरेज आ गया 200, राइट। सो HbA1c इज नथिंग बट एवरेज। तो अगर 200 एवरेज है तो आपका शुगर 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। सिमिलरली इट कैन आल्सो गो 200, 250, 300, 350, राइट। सो पॉइंट ओवर हियर इज कि ये जो वेरिएबिलिटी है लो से लेके हाई वाली, ये वेरिएबिलिटी HbA1c अच्छे से नहीं पिक कर पाता, राइट। सो ऐसे पेशेंट्स जिसे कभी-कभी पाया जाता है कि जब लेबोरेटरी में चेक करते हैं हम, राइट, तो उसका HbA1c 6.5, 6.6 आता है, बट उसका प्राइंडियल शुगर देखो तो 250, 300, 400 आता है, राइट। और बीच-बीच में अगर वो पेशेंट का अगर अच्छे से हिस्ट्री लिया जाए या CGMS किया जाए, तो पता चलता है कि भाई साहब बीच में हाइपोग्लाइसेमिया भी बहुत सारा टाइम निकालते हैं, राइट। तो CGMS इज नथिंग बट कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट। तो वो थोड़ा सा नया एडवांस है, अभी पिछले 1-2 साल में हम इंडिया में यूज करना चालू किए हैं। इट इज नथिंग बट एक छोटा सा सेंसर आता है, बहुत सारे लोगों को भी पता होगा, जो मेडिकल लिटरेचर सोशल मीडिया में पढ़ते हैं उन लोगों को सबको पता होगा, एक छोटा सा सेंसर है जो हम आपके बॉडी में स्किन के ऊपर अटैच कर देते हैं, एंड इट गिव्स अस अ 24 आवर प्रोफाइल for your interstitial fluid sugar level, right? So it gives us the trend कि आपके पूरे दिन में आपका शुगर का ट्रेंड क्या रहता है, कि जैसे सुबह ये बढ़ रहा था, कम हो रहा था, रात को कैसा था, सोए तब कैसा था, वो कंटिन्यूअस जैसे पल्स का या ECG का जो प्रोफाइल आता है, वैसे CGMS का प्रोफाइल आता है, ठीक है। तो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर का 3 दिन का, 7 दिन का, 14 डेज का, अब्रॉड में 6 मंथ का भी CGMS प्रोफाइल आने लगा है, राइट। सो इट गिव्स अस अ वेरी गुड इनसाइट टू फाइन ट्यून योर थेरापी, खास करके जिसको ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी मतलब जिसका कम भी बहुत होता है, हाई भी बहुत होता है पूरे दिन में, ऐसे लोगों के लिए CGMS इज अ वेरी गुड डिवाइस
कि जो हम उसको लगा के फिर उसको पर्टिकुलर कौन से टाइम में कम रहता है, कौन से टाइम में बढ़ता है, उसको टारगेट करके उसकी थेरेपी वहां पे, उसका डाइट वहां पे डिसाइड करते हैं, और वी ट्राई टू मेक probable smaller range of fluctuation in his sugar. It is a very good device for those needed ones, right? Right. Thank you, sir. That was a very informative session. Now we'll take up some viewers' questions. Okay. The first question is, what type of care should I opt for when my parents are under diabetic care since a long time? This is by Vikas Nigam. Okay. See, so as we know that your parents are having diabetes for long time, right? So long time पे है तो obviously जो आपका शुगर है वो तो आपको अच्छे से केयर करना ही है, but after long time you must thrive on your complication screening. तो आप ऐसी जगह पे जाएंगे केयर लेने, वहां पे जहाँ पे आपका हार्ट चेकअप होगा, आपका किडनी चेकअप होगा, आपका नर्व्स चेकअप होगा, वेसल्स चेकअप होगा, फूड स्क्रीनिंग होगा, ठीक है? ये मैंडेटरी है आपके लिए. सो फाइंड आउट अ प्लेस नियर यू जहाँ पे डॉक्टर डू ऑल दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, और उसका कॉम्प्लिकेशन स्क्रीन करके अगर अनफॉर्चुनेटली कोई कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती है तो उसकी एक ट्रीटमेंट जो होती है वो हो जानी चाहिए. साइमल्टेनियसली अ पॉइंट आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड हियर कि अगर लॉन्ग टाइम से आपको डायबिटीज है, वी आर टॉकिंग टाइप 2 डायबिटीज, पेरेंट्स है, ठीक है, यंग बंदे के पेरेंट्स, सो वी वुड एक्सपेक्ट कि उसकी एज इसने स्पेसिफाई नहीं की, बट आई वुड लाइक टू जज के भाई साहब जो दिख रहे काफी यंग है, अराउंड 30, तो उसके पेरेंट्स 60-70 के आसपास के अगर है, तो उन लोगों को जो डायबिटीज का अपना टारगेट होता है शुगर का, वो शुगर का टारगेट हम थोड़ा लिबरलाइज कर सकते हैं. जैसे HbA1c उसमें 6.5 ना रख के हम अराउंड 7 या अप टू 7.5 भी कभी कभी ले जा सकते हैं. अगर आपको हार्ट का, किडनी का पेशेंट हो रहा है तो अप टू 7.5 भी ले जा सकते हैं. उसमें पॉइंट ओवर हियर इसके उसको हाइपोग्लाइसेमिया नहीं देना होता है, ठीक है? अगर उससे पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो इट एक्चुअली गिव्स अ वेरी डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन ओवरऑल हेल्थ, राइट? सो you should opt a care over the center which gives you sugar control as well as very good complication screening, and they will guide to treat whatever complication present in your parents. Okay. The next question is by Rajput Hamsar. My neighbor's toenail has hardened. When her diabetes shoots, it pains and toe becomes red. When it is in normal range, there is no pain. This has been observed by her. Need your expert advice on the same. हाँ, एक्सपर्ट एडवाइस कैन ओनली बी गिवन आफ्टर सीइंग द नेल. आप उसकी इमेज या वीडियो देख के ही बोल सकते हैं, बट इफ वी टॉक इन टर्म्स इन जनरल टर्म्स, जो फुट है, फुट के जो नेल पोर्शन है, राइट? तो जो हमने फुट एग्जामिनेशन बोला था अभी कि आप सोल वगैरह देखेंगे, अंदर की जगह अल्सर है कि नहीं, केलस है कि नहीं, तो नेल भी एक ऐसी चीज है जिसको आपको फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करना है. खास करके जो नेल है उसमें कहीं इनग्रोविंग हो रहा है, नेल फोल्ड है, वहां पे रेडनेस वगैरह हो रही है, राइट? तो दैट कैन सोज के वहां पे इन्फेक्शन की शुरुआत हुई है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में उसकी मेडिसिन या कभी कभी इंटरवेंशन जरूरी होता है. सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू के you either go to your healthcare provider or send your healthcare provider the photos or images of the particular nail, and then get consultation. Okay. The next question is by Sneh Jain. Can we have clarity on types of diabetes and the chances of overcoming, reversing the medical condition? Yes, this is a very good question. Practically, I would like to see this type of question, right? अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो डायबिटीज के जो टाइप्स है वो आमतौर पे हम टाइप 1 और टाइप 2 में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है? जैसे टाइप 1 है वो जनरली बच्चों में या एडोलेसेंट फेज में पाया जाता है, बट उसकी एज अप टू 25 ईयर की है, वहां तक अगर पाया जाता है तो उसको टाइप 1 बोला जाता है. आमतौर पे वो कीटोसिस प्रोन डायबिटीज होता है कि वो पेशेंट का धीरे धीरे जो है इंसुलिन बनना कम हो जाता है बॉडी में, एंड ऑल टुगेदर बंद ही हो जाता है, राइट? तो ऐसे पेशेंट को जनरली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है, देन दे कम टू नोटिस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड देन एक्चुअली गेट्स डायग्नोस्ड, एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसे पेशेंट को इंसुलिन लेना कंपलसरी हो जाता है.
देन कम्स द मोर कॉमन वन दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। वो आमतौर पे एडल्ट लोगों में पाया जाता है, राइट, अराउंड आफ्टर 25-30 के बाद। बट वो लोग काफी ओबेस रहते हैं, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग रहती है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होती, डाइट उसका काफी खराब होता है। ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट में साथ साथ में बाकी बाकी भी जो बैड मेटाबॉलिक्स के साइन है, जैसे फैटी लीवर होता है, हाई यूरिक एसिड होता है, ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, थोड़ा हार्ट किडनी ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता है, ये सब चीजें भी साथ में उसको हो सकती है। तो जनरली स्पीकिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज आर देयर, बट नाउ व्हाट हैपेंस दैट आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च इन लास्ट प्रीवियस इयर्स वी आर कमिंग अक्रॉस मेनी अ टाइप ऑफ पेशेंट जिसमें ऐसा होता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज जो हुआ करता था, ठीक है, वो टाइप 1 जो डायबिटीज है वो काफी लेट ऑनसेट बन जाता है कभी कभी, जिसको हम लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट बोलते हैं, राइट। तो लाडा बोला जाता है। तो वैसे पेशेंट जनरली धीरे धीरे उसका इंसुलिन तो कम होता ही है, बट उसको ऑल टुगेदर इंसुलिन बंद नहीं हो जाता। तो वो एडल्टहुड में पाया जाता है आफ्टर 25-30 ईयर के बाद भी, ठीक है। उसके शुरुआत में कभी कभी दवा से भी उसका अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, बट अ टाइम डू जनरली कम आफ्टर फ्यू मोर इयर्स और डिकेड्स ऑल टुगेदर कि उसको इंसुलिन की आवश्यकता रहती है। एंड नाउ अनदर वेरी अलार्मिंग थिंग कि जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर बच्चे जो है एडोलेसेंट से टीनेजर से उसमें जंक फूड खाने का, फिजिकल इनएक्टिविटी का काफी प्रिवेलेंस बढ़ गया है, राइट। सो ऐसे पेशेंट्स जो है वो काफी जल्दी उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ने लगता है, और कभी कभी अब अबाउट 15-20 इयर्स में उसको डायबिटीज भी पाया जाता है, बट वो टाइप 2 डायबिटीज होता है। बच्चों वाला जो टाइप 1 जो हम डिस्कस कर रहे थे वो नहीं होता है। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग, राइट। सो अगर हम ये बोले तो अभी एज जो है, या ये एज में हुआ तो टाइप 1 ही है, या ये एज में हुआ तो टाइप 2 है, ऐसा नहीं है, राइट। वी नीड टू कम अप थिंक प्रॉपर्ली बिफोर स्टैम्पिंग द डायग्नोसिस सो दैट आगे का ट्रीटमेंट आपका फिक्स हो। Now the second part of your question, how to overcome or reverse this particular condition, that's a very good question. So type 1 में तो reversal का अभी डिस्कशन या स्कोप नहीं है, we are still falling short. Science has no answer regarding type 1 diabetes, but yes, type 2 is definitely preventable, or at least we can reduce or hold the progression, right. आमतौर पे देखा जाता है कि जो टाइप 2 है उसके जो रिस्क फैक्टर है, जो हम बार बार अभी डिस्कस कर रहे हैं कि ओबेसिटी है, आपका डाइट है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, ठीक है, ये जो आपका बेड मेटाबॉलिक प्रोफाइल है, ये सब चीजें जो है वो आप अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट से आप इजीली, नॉट दैट मच इजीली, बट ये आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने वो कंट्रोल किया देन देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो रिवर्स हो जाए, राइट। There are a few trials are also there over medical science if we talk in terms of कि वहाँ पे there are good long results available कि अगर पेशेंट अगर 30-35 एज में डायबिटीज पाया जाता है तो उसको हम सर्टेन पर्टिकुलर डाइट जिसमें कैलोरी कार्बोहाइड्रेट कम करके देते हैं, एक्सरसाइज लेवल एक मेंटेन कराते हैं, उसका ओवरऑल जो डी स्ट्रेसिंग होता है, राइट, जो आपकी फिजिकल और मेंटल जो पूरे दिन की स्ट्रेस लेवल है उसको कंट्रोल करके अगर आपको गाइड किया जाए देन इट कैन एक्चुअली रिवर्स डायबिटीज, ठीक है। देन व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस पर्टिकुलर रिवर्सल इज द लॉन्गेविटी, राइट, बिकॉज अ पर्टिकुलर डाइट, जैसे अगर हम लो कैलोरी डाइट की बात करेंगे या कीटो डाइट आजकल बहुत आपने सुना होगा, राइट, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे अगर हम नॉर्मल एडल्ट की बात करें, जैसे एवरेज बिल्टअप है, एवरेज एक्टिविटी है, तो उसको 2000 से 2200 किलो कैलोरी उसको दिन में खाने की होती है, राइट। तो ऐसी जो पेशेंट को अगर डायबिटीज मिलती है तो उसमें क्या है कि हम उसका किलो कैलोरी अराउंड 1500 से कम या कभी कभी 1000 से कम करते हैं खाने में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लेवल कम करते हैं, उसका फिजिकल एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं, गाइडेड एक्सरसाइज देते हैं। So we try to put them in a negative calorie balance, right? So ultimately it's fat and everything starts burning और उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे अनदर न्यूट्रल लेवल पे चला जाता है। इससे पेशेंट में डायबिटीज रिवर्स या शुगर रिवर्स होना संभव है, ठीक है। बट ये चीज को लंबे टाइम तक सस्टेन करना it's actually difficult on the part of doctor, difficult on the part of patient itself, right? अगर आप खुद का ही सोचेंगे, अगर आप दिन में जो खाते हैं उससे आधा आपका डाइट कर दे और आपको बोले कि आपको लाइफ टाइम ये करना है,
इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट। फिर आप धीरे धीरे उसको बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे, राइट, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे डाइट, देन देयर इज अ चांस कि जो आपकी मेटाबॉलिक जो पहले प्रोफाइल थी वो वापस थोड़ी थोड़ी बिल्ड हो सके, वापस वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा आपका शुगर बढ़ने लगे, ठीक है। सो ये जो रिवर्सल वाला थिंग है, it is very much there. We do advise reversal to many of patients. We do very good success rate, but the longevity of it, जैसे आप अगर आप 35 की एज में पाए जाते हो, 36-7 तक रिवर्स अगर हो जाता है, तो आप 70 ईयर तक उसको मेंटेन कर पाएंगे नहीं, वो कभी भी क्वेश्चन है, राइट? Right. The next question is by Patel Janesh. What are the precautions when diabetes is detected at an earlier stage? या तो जो हमने अभी डिस्कस किया पूरा कि शुगर और कॉम्प्लिकेशन, ये दो चीज के ऊपर फोकस है। टाइप 2 डायबिटीज की अगर हम बात करें, सो मेनी टाइम्स अप टू 30-40% ऐसा पाया जाता है कि जब टाइप 2 डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो 30-40% चांस है कि उसको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन की भी शुरुआत हो गई हो, या तो उसका रटाइना अफेक्ट हो रहा है, या उसको नेफ्रोपैथी हो रहा है, हार्ट वार्ट पे कोई इफेक्ट आई है। सो नो मैटर when your type 2 diabetes is diagnosed, आपको complication screening at the time of diagnosis करना compulsory है, right? Apart from that, obviously, अगर आपका लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, then medicine is not a question in type 2 diabetes. Definitely, you can manage with your diet and exercise, de-stressing and change in your lifestyle, or at least you can always give a chance, right? So early part है, जैसा आपका question है कि earlier stage में precautions क्या है, so focus on your diet, focus on your exercise, focus on your physical activity, de-stress yourself as much as possible, right? And then see कि कितने level तक आप जा सकते हो without medicine. मिनिमम 3 से 6 महीना तो आप फिजिकल एक्टिविटी वगैरह से आप कर ही सकते हैं, राइट? बट ऑलवेज डू टेक केयर ऑफ योर कॉम्प्लिकेशंस इवन एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस इन टाइप 2 डायबिटीज, इवन इन अर्लियर स्टेज। The next question is by Ravindra Singh Yadav. How can exercise make a difference in diabetes? It makes a very very positive difference, right? See, सारे फसाद की जड़ जो है वो यही है, ठीक है। आपको हम सबको पता है कि जो अपनी लाइफस्टाइल हो गई है भागा दौड़ी वाली, उसमें एक्सरसाइज धीरे धीरे कम हो रही है, या फिर अभी अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे समाज में ये जागरूकता आ रही है लाइफस्टाइल के ऊपर, डिस्ट्रेसिंग के ऊपर, योगा वगैरह के ऊपर, उसमें ये हो गया है कि भाई एक्सरसाइज करने जाना है वो एक स्ट्रेस बन गया है। So we are seeing those many patient कि वो बेचारे इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि सुबह 5 बजे भाग के जिम जाना है, पैसे भरे हुए हैं, फिर भाग के ऑफिस भी जाना है, फिर शाम को फैमिली के साथ कोई भी क्वालिटी टाइम आप स्पेंड नहीं कर पाते, तो फैमिली भी डिस्टर्ब है, आप भी डिस्टर्ब हो। अल्टीमेटली जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसका आपको एडवांटेज भी नहीं मिल रहा है, राइट? सो दिस इज एक्चुअल रियलिटी। बट अगर हम उसको अच्छे से प्लान करें, जैसे आपका जो कोई शेड्यूल है, राइट, आपका जो शेड्यूल है उसमें कहाँ पे आप टाइम निकाल सकोगे, कैसे टाइम निकाल सकोगे कि आप एक्चुअली डिस्ट्रेस रहे और आपका जो बाकी का टाइम है वो भी कट शॉर्ट ना हो, ऐसे लेवल पे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे जो एक्सरसाइज है वो 3 टाइप की होती है, राइट? तो इनिशियली जो है वो आपकी स्टेमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज है, राइट? देन कम्स एरोबिक एक्सरसाइज जो आपकी मसल एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज है, देन इट कम्स द मसल बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज, देन कम्स द स्ट्रेचिंग। तो ये तीनों प्रकार की एक्सरसाइज आप अगर 15-20 मिनट करते हैं, सो अराउंड 40-50 मिनट का सेशन आप करते हो, इट गिव्स अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट टू बोथ your mind as well as your body. And by body what we means that आपका जो शुगर लेवल है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आपका ऑल टुगेदर फिटनेस लेवल है, वो काफी इंप्रूव होता है। और इट इज द पिलर आई मस्ट urge all the listeners over here that you must indulge into exercise in whatever possible way you want, right? It should be there in your day to day activity, या फिर एटलीस्ट आप हफ्ते में 4 से 5 दिन तो अच्छे से करो, बाकी 2-3 दिन नहीं कर सको तो दैट इज फाइन, राइट? एंड या वीकेंड वॉरियर इज आल्सो नाउअडेज फैशन कि आप 5 दिन कुछ नहीं करते और बाकी के जो 2 दिन है उसमें आप ढेर सारा कर लेते हो, राइट? तो अगर आप यू आर स्टिल यंग इनफ टू
ट्रेन योर बॉडी इन दैट पर्टिकुलर मैनर कि भाई 5 दिन कुछ ना करके 2 दिन हम अच्छे से करेंगे, तो आप विथ योर डॉक्टर, विथ योर फिजियो गाइड आप वो भी कर सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट प्लीज डू इट. The next question is by Harsh Bhavsar. Are obese people more prone to diabetes? Yes. राइट, वेरी सिंपल. जैसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं ओबेसिटी को रिस्क फैक्टर डायबिटीज का, बट अगर उसका हम थोड़ा साइंटिफिकली डिटेल में जाए कि भाई ओबेस पीपल जो है, राइट, उसमें बेसिकली होता क्या है कि इट्स नॉट ओनली डायबिटीज स्ट्रेट अवे हैपेंस. what obese people are actually prone, they are more prone to develop insulin resistance, right? So जो insulin resistance जो है वो basically क्या है कि भाई हमें पता है या मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा कि बॉडी में ग्लूकोज को पचाने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए. इंसुलिन बेसिकली पेनक्रियास स्वादुपिंड से बनता है, राइट? तो वो जो है ओबेसिटी जनरली गिव्स अनफॉर्चुनेटली द इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो जो इंसुलिन बॉडी में है वो चाहिए इतना वर्क नहीं कर पाता, राइट? तो इंसुलिन का एक रेजिस्टेंस बन जाता है, उसकी वजह से हाइपर इंसुलिनेमिया होता है, एंड दे डू सम टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वर्ट इन डायबिटीज. ठीक है, बट अगर ओबेस लोगों को डायबिटीज नहीं भी हुआ है तो वो अगर उसका देखा जाएगा तो या प्री डायबिटीज फेज में या हाइपर इंसुलिनेमिया फेज में, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट फेज में जनरली होते ही है, या उसका कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हुआ होता है, राइट? अगर नहीं हुआ है तो भगवान की आपके ऊपर मेहर है, बट वो आगे जाके आपको कोई मैकेनिकली अफेक्ट करेगा, जैसे ओबेसिटी, स्लीप एपनिया हुआ या ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, फैटी लिवर हुआ, ये सब चीजें. बट यस, obese people are very much prone to develop diabetes. The next question is by James Bose. Are diabetes patients more vulnerable to other illnesses? Yes, dear. See, जैसे हमने जो कॉम्प्लिकेशंस की बात की है, वो अगर कॉम्प्लिकेशंस को आप इंडिविजुअली पकड़ोगे, ठीक है, तो किडनी का, हार्ट का, आंख का, स्किन का, ये सब चीजें आगे जाके एक डिसीज ही है, राइट? सो डायबिटीज ऑफ कोर्स मोर प्रोन टू डेवलप अदर इलनेसेस, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी की चीजें है, जैसे कोविड टाइम की हमने शुरुआत से ही कोविड से चालू किया था, तो जो कोविड है, राइट, सो कोविड का कंटेजियस लेवल इतना ज्यादा है, सेकेंडरी अटैक रेट जिसको हम बोलते हैं, इट्स अराउंड 30 to 40. व्हाट दैट एसेंशियली मींस कि भाई अगर आप मेरे को आज कोविड है और मैं 100 लोगों के संपर्क में आता हूँ, तो उसमें से 30 से 40 को तो कोविड होगा अगर हमने सबने प्रिकॉशन नहीं लिया है तो कोविड का अगर देखें तो कोविड की वजह से डायबिटीज में कोविड ज्यादा नहीं होता, वो जो नॉन डायबिटीज से डायबिटीज से है, क्योंकि उसका अदरवाइज अटैक रेट ही इतना ज्यादा है. बट इन जनरल जो कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे सीवियरिटी लंग का हुआ और दूसरा इन्फेक्शन लगा और कोविड का कॉम्प्लिकेशन है, डेथ रेट है, ये सब डायबिटीज में काफी ज्यादा है, राइट? सो अगेन इट इज मोर वल्नरेबल. और ये तो कोविड की बात हुई, बट एनी हाउ अदर जो इन्फेक्शंस है, यू टेक एनी इन्फेक्शन, every particular infections are very diabetic persons are very much vulnerable to those type of particular infections, right? और बाकी जो complications वाले सारे हमने disease बोले, they are much more vulnerable as compared to, जैसे अगर किडनी फेलियर की बात करें तो किसी को डायबिटीज नहीं है तो ऐसे पेशेंट को किडनी फेलियर होने के चांसेस, और किसी को डायबिटीज है और किडनी फेलियर होने के चांसेस वे हाई. ओके, राइट. The next question is by Ashutosh Vyas. Can type 2 diabetes be prevented? Of course. It's a very good question. See, we must indulge in this type of discussion more rather than treatment and complication screening, क्योंकि ये चीजें एज अ डॉक्टर मैं देखना चाहूंगा, राइट? क्योंकि ये इसका आंसर देने से पहले हम थोड़ी एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं कि अभी इंडिया में अराउंड 70 मिलियन, ठीक है, 7 करोड़ लोग डायबिटीज के हैं, ठीक है. तो ऐसा आईडीएफ ने, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने प्रिडिक्ट किया है, जो इंडिया में अभी 7 मिलियन है, वो आपसे 20-30 साल के बाद वो अराउंड 140-150 मिलियन हो जाएंगे, ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे, राइट? सो 7 करोड़ लोगों को तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट को तो हमें संभालना ही संभालना है, बट बाकी जो है उसको प्रिवेंट कैसे करना है? भाई वी आर 135 करोड़ इंडियंस, राइट? तो प्रैक्टिकली तो सब रिस्क में आ गए,
ठीक है। तो जो प्रिवेंशन वाला पोर्ट है उसको हमें ज्यादा फोकस करना है। सो आई लाइक टू थैंक मिस्टर आशुतोष फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन so that we can discuss in such type of platform. So prevention, yes, it can be prevented, right? अगर अगर आप एक जागरूक इंसान है, ठीक है, अगर आप आपके हेल्थ चेकअप टाइम पे करते हैं, आपका डाइट प्रॉपर है, आपका एक्सरसाइज प्रॉपर है, ठीक है, अगर आप प्री डायबिटीज फेज में भी आ चुके हो या अर्ली डायबिटीज फेज में भी आ चुके हो तो भी आप रिवर्स कर सकते हो, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगेन द लाइफस्टाइल, डाइट एंड एवरीथिंग कम्स देयर, but yes, the answer to your question is type 2 diabetes can be prevented. The next question is by Ravindra Yadav. What is the importance of diet in diabetes? अरे भाई, सब वही तो है, डाइट ही है ना। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हम ट्रेडिशनल इंडियन डाइट बोले, राइट? So traditional Indian diet, it is a carbohydrate rich diet, right? So अगर you go in any part of India, north, east, west, south, more or less around 55 to 65% और कभी कभी 70% जो अपना डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट दे देता है। सो एक्चुअली जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होके अल्टीमेटली जो ब्लड ग्लूकोज बनने वाला है तो वो तो बनेगा ही, ठीक है। सो जो डाइट का इंपॉर्टेंस हम देखा जाए सो यही है कि अगर आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम कर सको, राइट, then it is a very very good thing to do in diabetics, right? But वो कैसे कम करनी है, दिन के कौन से टाइम में कम करनी है, जिससे आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल, आपका हंगर लेवल, आपका परफॉर्मेंस लेवल, ओवरऑल आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट कैसे हो ना हो, वो आपको आपके डायबिटीज डॉक्टर के साथ और डाइटिशियन के साथ बैठ के प्लान आउट करना है। क्योंकि डाइट इज ऐसी चीज है कि वो सबकी एक सब्जेक्टिव चीज, फीलिंग, इमोशन से जुड़ी हुई चीज होती है। क्योंकि इसमें हम देखा जाता है कि वो एक प्रिंटेड दे देते हैं चीज को सबको कि भाई ये आप चालू कर दो खाना और आपका ठीक हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट? क्योंकि सबका टेस्ट डिफरेंट है, घर पे सबके मसाले तेल डिफरेंट है, सबका ये जो क्वांटिटी डिफरेंट है, ठीक है। सो अल्टीमेटली द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इज दैट कि वही डाइट जो है आप खाते हो वही आपको डिजीज करता है, और वही डाइट अगर हम अच्छे से चेंज कर पाए तो वही आपका जो ट्रीटमेंट है वो इतना स्मूथ कर देता है कि कभी कभी आपको दवा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बट टू गो फर्दर डीप, कि जैसे हमने इनिशियली बात किया था कि वो लो कैलोरी डाइट में, सो दीज आर पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ डाइट, देयर इज लो कैलोरी डाइट, वेरी लो कैलोरी डाइट, प्रोटीन डाइट, हाई फैट डाइट, कीटो डाइट। so these are particular sort of diet कि वो आपको certain level of your diabetes profile will help you to naturally reduce your blood sugar, right? बट वो कैसे लेना है उसकी जनरल आउटलाइन यहाँ डिस्कस हो सकती है। पर्सनल लेवल पे आपको आपके केयर प्रोवाइडर के पास जाके और डाइटिशियन के साथ बैठ के अच्छे से प्लान आउट करना है, देन इट कैन गिव यू वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर डिजीज मैनेजमेंट। True. The next question is by Dr. Upmanyu Mandloi. A regular use of insulin can make weight gain. यस, बेसिकली इंसुलिन जो है वो उसका एक काम ही है कि बॉडी में फैट सिंथेसिस भी वो करता है, राइट? इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट जब डायग्नोस होते हो तो बिल्कुल सिकुड़ गए होते हैं, या टाइप 2 डायबिटीज में जब लेट स्टेज जाएंगे आप, जैसे किसी को टाइप 2 डायबिटीज 20, 25, 30 साल से है या उससे भी ज्यादा, तो वो लोग का वेट लॉस अल्टीमेटली होने लगता है, दैट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इंसुलिन। So if you start using insulin, आपका वेट रीगेन होगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आप अच्छे से ही वेट में है और आपको इंसुलिन लेना है तो थोड़ा सा इंसुलिन आपका वेट गेन भी करता है। सो इट इज अ वैलिड पॉइंट दैट रेगुलर यूज ऑफ इंसुलिन मेक्स वेट गिव्स यू अ वेट गेन, राइट? बट उसको हम कैसे यूज करते हैं, साथ में और कौन सी मेडिसिन है कि ये वेट गेन को बैलेंस कर पाए, वो हम देख के वी ऑलवेज ट्राई कि जो नॉर्मल पेशेंट है या ऑलरेडी ओबेस पेशेंट है उसको इंसुलिन यूज करना पड़ता है तो उसको ऐसे ही मेडिसिन के साथ देते हैं कि एटलीस्ट उसका सिग्निफिकेंट वेट गेन ना हो जाए। छोटा मोटा होगा वो हमें पता है, बट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वेट गेन ना हो जाए कि वो वेट गेन की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाए, राइट? Agreed. The next question is by Tricolor Hospitals.
During this festival season, what are the precautions for diabetic patients, especially in view of this corona pandemic? ऑब्वियसली देखो, अभी तो पिछले 6-8 महीने से आप बहुत ज्यादा चीजें ऑलरेडी सुन चुके हो, समझ भी चुके हो, फॉलो भी करने लगे हो, भूलने भी लगे हैं अभी क्या, या तंग भी आ चुके हैं कि क्या कितना मास्क पहनेंगे, क्या सोशल डिस्टेंस, यहाँ नहीं जाना, फेस्टिवल नहीं मनाना, ठीक है। बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड दैट वी आर स्टिल इनटू पैंडेमिक, ठीक है। एंड आफ्टर इनिशियल लॉकडाउन द इनिशियल वेव इज ऑलमोस्ट अबाउट टू on decline at almost every place। अगर हम बड़ौदा की बात करें, जैसे ट्राई कलर ने पूछा है, तो लेट अस फोकस ऑन बड़ौदा नाउ। कि बड़ौदा में भी अगर देखेंगे तो अभी हमारा फर्स्ट वेव जो है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। पिछले महीने तक अराउंड 110 120 के ऊपर केसेस डेली आते थे, अभी अराउंड 90s होने लगे हैं। सो वी आर डेफिनेटली ऑन डिक्लाइन, इट इज अ गुड पॉइंट। बट जैसे पूरा ये अभी रिलैक्स होंगे लोग, अगर हम आज भी अब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि देयर आर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पीपल, दे आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस, राइट। मास्क नहीं होता, डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। हैंड वॉश आई होप करते होंगे, वो तो हम सबके नहीं देख पाते। बट एक चीज हमें याद रखनी है कि विंटर्स आ रहा है और आ चुका है ऑलरेडी, तो कोई भी वायरल है, खास करके रेस्पिरेटरी वायरल जैसे अपना कोविड हुआ, उसकी मात्रा विंटर्स में बढ़ती है दोस्त। अगर हम ऐसे ही अनप्रिकॉशन लेवल पे कम्युनिटी में घूमते रहे, घर में घूमते रहे, तो डेफिनेटली सेकंड पीक आएगा। कुछ कुछ जगह पे ऑलरेडी आने लगा है, इंडिया में ही अगर आप दिल्ली के डिजिट नहीं देखे तो देख ले, ओवरसीज में भी आने लगा है, ठीक है। सो अगेन आई वुड लाइक टू रीइंफोर्स ओवर हियर, please do take proper care in terms of your hand hygiene, mask and social distancing। we are still into amidst of pandemic only, we are not out of it, या चला नहीं गया है कोविड कहीं पे भी। आप केयर करो, केयर के साथ जो भी करना है करो, आप केयर के साथ बाहर भी जाओ, केयर के साथ फेस्टिवल भी एंजॉय करो, होटल्स में भी जाओ, थिएटर अगर आपके लोकली खुले तो वहां पे भी जाओ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट प्लीज डू टेक केयर in terms of COVID, right? Now, in terms of diabetes, as we already discussed कि आप स्वीट भी खा सकते हो, कैसे खाना है हमें बताया है। दवा वगैरह जो है आपका टाइम पे लेंगे, अगर आपके डॉक्टर वगैरह या आपकी हॉस्पिटल अभी अगले दिनों में बंद रहने वाली है तो आप पहले से जाके एडवांस में सब आपका डिस्कस कर लेंगे। डायबिटीज दिवाली की प्रिपरेशन में कैसे कैसे आपको डायबिटीज का ये करना है, राइट। एंड बस बी रिलैक्स, बट इन अ सिमिलर वे प्लीज मेंटेन योर प्रिकॉशंस। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा अभी। Thank you so much, sir. It was a really good session with you. I'm sure a lot of queries on diabetes were answered today. And lastly, I would like to thank all our viewers for joining in. Thank you so much, everyone. See you soon. Until then, stay home and stay safe. Thank you.